Hello students, we were doing our chapter magnetic effects of current, that is chapter number 13 of class 10. Now, we have done up to magnetic field around a straight conducting wire, in which we have observed that the magnetic field is in circular loops, ठीक है, ऐसे circular loops में बनी थी, and it is the circular loops have concentric circles. These are concentric circles. So क्या है concentric circles means कि सबका सेम सेंटर होगा कि अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस पे तो वन सेंटर, वन सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल एंड सो ऑन, all will have this as a center. And if I look here, then as यहाँ पे भी ऐसे ही first circle, second circle, third circle and so on. Okay. Then we used right hand thumb rule or cork rule to give the direction of magnetic field relative to the direction of current. That is, if the current is in upward direction, magnetic field is in anti-clockwise direction given by this right hand thumb rule. Okay? This thumb will give the direction of current and curls of the finger will give the direction of magnetic field. Fine. Then we did how I can change the magnetic field in this wire. So here magnetic field is directly proportional to the current. That means more the current, more stronger the magnetic field would be, and the magnetic field is inversely proportional to the distance from the wire. Okay, that is, as I move away from the wire, the magnetic field will decrease. So these were our few points related to magnetic field around a straight wire. Now the second thing we did is we turned this wire in the circular shape, and our topic would be now magnetic field lines around a circular loop. Okay, so this is our next topic. Now हम क्या करेंगे, यही अपना जो राइट हैंड थंब रूल है इसको यूज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड इसमें बन गई. फाइन. सो इसके लिए आई हैव अ वायर. मैंने क्या किया, इसको सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया. ओके. नाउ उसके बाद क्या चाहिए मुझे, करंट चाहिए. सो आई कनेक्टेड अ बैटरी विद इट with a switch. Fine. So this is my circular loop where I want to know the direction of magnetic field. ठीक है. अब इसमें जो तुम्हें बुक में शो किया होगा कि the activity is we can have a cardboard. Through that cardboard we'll pass a wire in the circular shape. ठीक है. And we'll throw the iron fillings on it such that then we'll tap the cardboard such that the iron fillings will align itself according to the magnetic field, and मुझे जो shape मिलेगी उसमें वो कैसी होगी वो देखते हैं. कि suppose here the current is in upward direction and here the current is in downward direction, obviously because the current moves from positive of the battery to the negative of the battery. Okay, so मेरा करंट ऐसे जा रहा है and will move in serial order. ठीक है कि हम सब कुछ एक ऑर्डर में चलेंगे. वेरी फर्स्ट मैंने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. उसी प्रॉपर्टीज को मैंने स्ट्रेट लाइन में यूज किया कि वो क्लोज लूप होना चाहिए, उसका डिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है. अब जो हमने थंब रूल में पढ़ा, जो हमने स्ट्रेट वायर में पढ़ा, उसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि here the current is in upward direction, and if the current is in upward direction, then the magnetic field would be in anti-clockwise direction. Okay, so it would be like in this anti-clockwise. Let me complete the circle. So it would be like this. ठीक है.
यहां से एंटी क्लॉकवाइज हियर, सो ऐसे ही। Now what will happen here? Again, as we move away, the distance between the magnetic field lines increases. That means the radius is increasing here. So firstly, the curve of the circle is small, then curve increases, then increases and increasing and increases, and at a larger distance, the curve becomes approximately straight. ठीक है? यहाँ पे भी सर्कल है, बट मैं कंप्लीटली बना रहा बिकॉज वो बोर्ड के बाहर आ जाएगा ऑब्वियसली। सो मैं सिर्फ अंदर जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको बना रहा हूँ कि उसके बाद ये ऐसा होगा, ठीक है, एंड सेंटर तक आते आते अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना कि कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सर्कल का। तो ये मेरा इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। राइट, अब यहां पे देखते हैं, here the current is in downward direction, and if the current is in downward direction, that means magnetic field would be clockwise. So here it is clockwise, clockwise, clock. So यहाँ क्या होगा, रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, और ऐसे ही मेरे पास करंट डाउनवर्ड तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी करंट डाउनवर्ड तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनती रहेगी। ठीक है, अब यहां अगर मैं देखूं तो वही हो रहा है कि यहां कर्व कम था, कर्व इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ एंड अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट हो गया। सो यहां पे देखो कि हर जगह अंदर सेम ही डायरेक्शन मिली। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड द लूप ऑलवेज हैव द सेम डायरेक्शन। ठीक है, फर्स्ट चीज ये पता चली। सेकंड थिंग, इफ आई चेंज द करंट इन दिस तो क्या होगा, वो भी करके देख लेते हैं। सो यहां पे है मेरे पास कि इफ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है, नाउ दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, मींस करंट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा रफली बनाया मैंने। तो क्या हो जाएगा, अब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, हेंस एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक, जिसका कर्व क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट होता जाएगा। आई एम अगेन सेइंग कि मैं थोड़ा सा रफली बना रहा हूं। अब यहां करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज मींस ऐसे। ठीक है, सो ये भी डाउनवर्ड ही आएगी। हेंस यहां देखो सारे अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहां सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मींस मेरे पास करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। बट एक चीज अगर मैं देखूं यहां पे, बिकॉज आई एम ड्राइंग दिस इन 2D, ठीक है, प्लेन में बना रहा हूं, 2 डायमेंशनल बना रहा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये सारा का सारा सर्कल मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स को स्टडी करके बना दिया। इज इट नॉट, इट इज नॉट सो। इसके लिए टू एक्सप्लेन दिस आई एम यूजिंग दिस कर्व। ठीक, यहाँ पे अगर मैं कहूं कि मेरा इस डायरेक्शन में करंट अपवर्ड है, ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ एक अपवर्ड एरो लगा देते हैं। ठीक, और यहाँ पे आई हैव अ डाउनवर्ड एरो। सो यहाँ देखो क्या है मेरे पास, हियर द करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड, हम रूल लगाते हैं अपना कि मैंने सपोज दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये देख लो, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी व्हिच इज एंटी क्लॉकवाइज। दैट मींस कि इस पॉइंट के लिए, जस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक सर्कल जो होगा ऐसे, यहां से एमर्ज आउट, यहां से एमर्ज इन। ठीक है, ऐसे एक सर्कल यहां बनेगा जो यहां से बाहर आएगा, यहां से अंदर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास क्या होंगे, कुछ सर्कल्स सिर्फ इसी पॉइंट के अराउंड लेकर सर्कल बनेंगे। एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, जो कि अप्रोक्सीमेटली ऐसे स्ट्रेट होगा। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ डाउनवर्ड है, इसको मैं होल्ड करके देख लेता हूँ। ठीक, तो मेरे पास क्लॉकवाइज बनेगी, मींस यहां से एमर्ज आउट, यहाँ पे इन। इसमें भी यही हो रहा था, यहाँ पे एमर्ज आउट, यहाँ पे इन। तो याद रखना, यहां से अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, यहां से बाहर, चाहे मैं इस तरफ देख लूं चाहे इस तरफ देख लूं।
देखो दोनों चीजें सेम, एक ही डायरेक्शन थी ना। यहाँ देखो मैंने होल्ड किया ऐसे, ठीक है, करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्या हो रही है, इसके अंदर जा रही है यानी यहां से बाहर आ रही है। फिर मैंने इसको ऐसे होल्ड किया, ठीक। अब डाउनवर्ड होगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसमें भी मेरे पास इन द सिमिलर वे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे, यहां से इमर्ज आउट, यहां से इन, ठीक है। तो इस तरफ मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आ रही है। एंड इसके लिए अब मुझे पता है कि एक मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ है अगर, सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये हम कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड इफ इट इज मूविंग फ्रॉम दिस एंड टर्मिनेट्स एट दिस, ठीक है, ऐसे अंदर जा रही है, ऐसे अंदर गई, ऐसे यहां से क्या होगा, यहां से बाहर घूम के फिर यहां से अंदर, ठीक है, यहां से बाहर घूम के फिर अंदर। सो क्या होगा कि ये मेरे पास यहां से अगर टर्मिनेट हो रही है, मींस ये मेरा नॉर्थ हो गया, यहां सॉरी यहां से मर्ज आउट हो रही है तो ये नॉर्थ हो गया, यहां पे टर्मिनेट हो रही है तो ये साउथ हो गया, ठीक है। हेंस ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। क्लियर है? तो ये था मेरा मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप। इसमें हमने क्या क्या देखा, ठीक है, अभी और डिटेल में हम देखेंगे इसको। वेरी फर्स्ट कि इसमें मेरा नॉर्थ साउथ होता है, ठीक है। एंड सेकेंड हमने देखा कि अगर करंट चेंज हो जाए सो मैग्नेटिक फील्ड भी की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दिस B denotes magnetic field, हमने किया था, I denotes current. So because एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो इट मस्ट हैव अ डायरेक्शन। एंड अगर डायरेक्शंस है तो इसको मैं एक छोटा सा मैग्नेट मान के चलूं तो इसका नॉर्थ एंड साउथ भी होगा। वो भी हमने देख लिया कि इसका एक साइड, ये साइड नॉर्थ थी, ये साइड साउथ थी, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट टू समराइज दिस कि इसका नॉर्थ कब बनेगा और साउथ कब बनेगा। सो लुक हियर, व्हेन द करंट वाज इन क्लॉकवाइज मैनर, करंट ऐसे जा रहा था क्लॉकवाइज, सो क्या बना था, ये साइड मेरी साउथ बनी थी, ठीक है। करंट ऐसे क्लॉकवाइज है और साइड कौन सी बनी, साउथ। तो मैंने क्या किया, ये देखो ये आ गया मेरे पास एक रूल कि अगर करंट ऐसे क्लॉकवाइज मैनर में है तो मेरे पास जो मैग्नेट की डायरेक्शन बनेगी, जो ये मैग्नेट बन गया उसकी डायरेक्शन होगी साउथ। फाइन, नाउ ऐसे ही अब देखते जाओ, ये क्लॉकवाइज है, मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक। ये क्या हो गया मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब ये मेरे पास जो इसका दूसरा एंड है, अगर ये एंड साउथ था, ठीक, ये एंड में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसी एंड में वैसा ही करंट मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये आगे भी करेंगे कि अगर मेरे पास मैं इसके ऊपर वायर्स की टर्न्स कर दूं, एक साइड पे मुझे अगर यहाँ साउथ यहाँ क्लॉकवाइज दिख रहा है, वही यहां से देखूंगा, एक साइड से देखूंगा तो क्लॉक दिखेगा, दूसरी साइड से दिखेगा तो एंटी क्लॉक दिखेगा। मींस इसकी एक साइड पे मेरे पास अगर साउथ है तो दूसरी साइड पे नॉर्थ है, जहां मुझे करंट कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इट इज द मैटर ऑफ रेफरेंस ऑफ पॉइंट कि मैं किस पॉइंट से देख रहा हूं। अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूं तो ये करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है, अगर ऐसे देखो तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। 180 रोटेशन आ गई ना इसमें। सो यहां पे क्या हुआ मेरे पास कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, ठीक है, करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, तो मेरा ये नॉर्थ बनेगा, ठीक है। एंड इसको याद करने का यही बेटर वे है, यही इजी वे है कि ये देखो साउथ की डायरेक्शन में चलते जाओ, ठीक। तो मेरे पास क्लॉकवाइज करंट आएगा, ऐसे ही नॉर्थ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंड दिस रूल इज कॉल्ड क्लॉक फेस रूल, ठीक है। दिस रूल इज कॉल्ड क्लॉक फेस रूल। तो हमने इसको अब डिटेल में समझ लिया कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है मेरे पास, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो
सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपनी प्रीवियस नॉलेज से कि अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इस पॉइंट पे मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज मैनर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो यहाँ सर्कुलर लूप्स बने। यहाँ पे डाउनवर्ड सर्कुलर लूप्स, जब करंट जा रहा है तो सर्कुलर लूप्स बने, ठीक। तो उसके कारण क्या हुआ, मेरे पास ऐसी एक मैग्नेटिक फील्ड बनी जो सारी एक ही डायरेक्शन में थी। एंड सिंस ये एक तरफ से एमर्ज आउट हो रही थी, दूसरी तरफ से जो है टर्मिनेट हो रही थी, और ऐसा ही हम बाहर मैग्नेट में भी देखते हैं कि जहां से टर्मिनेट होती है, जहां से एमर्ज आउट होती है वो नॉर्थ, जहां पे टर्मिनेट होती है वो साउथ। तो इसका नॉर्थ साउथ भी हमने बताया, फिर उसको समराइज किया दैट इट कैन बी समराइज्ड यूजिंग क्लॉक फेस रूल, कि अगर मुझे बताना है कि उसमें करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं इससे बता सकता हूं दैट अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ। अब इसको हम चेक भी करेंगे, ठीक है। अब हम फिजिसिस्ट हैं, ऐसे कोई बात नहीं मानते जल्दी से, तो मैंने इसको क्या किया, चेक करना है। मैंने कहा था ये मेरा साउथ पोल है, ठीक है। अब एक नॉन मैग्नेट लेके गया मैं, नॉन मींस आई नो दैट दिस इज अ मैग्नेट हुज नॉर्थ इज दिस एंड साउथ इज दिस, ठीक है। दिस पॉइंटेड साइड इज नॉर्थ। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये साउथ था, मैं इसके पास ये साउथ लेके गया एंड ये थोड़ा सा रिपेल होना शुरू हो गया, ये वायर। एंड अगर ये वायर रिपेल होनी शुरू हो गई दैट मींस ये साउथ है। फिर मैं ये नॉर्थ लेके गया, ये हल्की सी अट्रैक्ट होनी शुरू हो गई, दैट मींस ये अगेन साउथ है। तो हमने इसको चेक भी कर लिया कि ये मेरे पास नॉर्थ और साउथ ऐसे बन रहा है, ठीक है। सो दिस वाज माय ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सर्कुलर लूप, ठीक है। फिर लास्ट में हमने एक और चीज की थी जो स्ट्रेट वायर थी, दैट कैन आई चेंज द मैग्नेटिक फील्ड इन इट। सो इन द सिमिलर वे जैसे हमने पीछे किया था, यस आई कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाउ? सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज सेम, दैट V is directly proportional to I. More the current, more will be the magnetic field. अगर मैंने 2 एम्पीयर का करंट दिया तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कम स्ट्रॉन्ग होगी relative to the 4 एम्पीयर करंट एंड relative to 12 एम्पीयर करंट, ठीक है। सो जितना हम करंट ज्यादा देंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। देन इन द सिमिलर वे हियर कि अगर अब मैं सर्कल का लूप बड़ा कर दूं, ठीक है, ये क्या करो, सर्कल का रेडियस बड़ा करता जाऊं, तो क्या होता जाएगा कि मैं दूर, इसमें क्या हो जाएगा कि ज्यादा क्राउडेडनेस नहीं होगी फिर, बिकॉज जितना सर्कल बड़ा हो जाएगा उतनी क्या होगी, लूप्स दूर जाते 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 क्या होगी, लेट मी ड्रॉ दिस। तो अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास बहुत बड़ा एक लूप ले लिया मैंने, ठीक है, तो यहां पे ऐसे यू कैन सी दैट क्राउडेडनेस इसकी कितनी डिक्रीज हो गई है, ठीक है। So here you can check that relative to this इतनी सी लाइंस, इतनी सी स्पेस में इतनी लाइंस है और वहां पे इतनी बड़ी, जैसे जैसे मैं दूर जाता रहूंगा इनमें रिलेटिव डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा और हेंस मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डिक्रीज होती जाएगी। तो ये मेरे पास इसका सेकंड क्या आता है, दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, फाइन। सो ये है मेरे पास इसका जो समरी है कि हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इन मेनी अप्लायंस आई मस्ट से कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, मैं करंट के अकॉर्डिंगली देख सकता हूं कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड जितनी चाहिए मैं उतना करंट अकॉर्डिंगली रख लूंगा, ठीक है। मैं उतना रेडियस अगर चेंज कर सकता हूं तो मैं रख लूंगा, सो दैट मेरे पास ये जितनी मुझे रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड है उतनी आ जाए, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस यू मे कमेंट
in the comment section. This is all about our magnetic field around the circular loop. In the next video, we'll do a very important topic, which is solenoid. What is the solenoid and how it is used in other appliances, ये सारे हम देखेंगे. ठीक है? So thank you.